ऑयल इंडस्ट्री है क्या? मतलब लोगों को तो ये ना कि जी कहीं से तेल निकलता है, वो आता है, हमें मिलता है, हम लोग खरीदते हैं, पैसे देते हैं. लाइक व्हाट इज दिस होल इकोसिस्टम? देखिए, इंडस्ट्री को सिंपली लेमैन टर्म्स में दो में डिवाइड कर सकते हैं. There is an upstream oil industry and a downstream oil industry. Upstream is exploration. जो oil ज़मीन से निकालते हैं, ocean से निकालते हैं, that's the upstream part. तो हम downstream wing है हमारा. Politically मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा सुनने में आता था पाकिस्तान में जी बहुत ज़्यादा गैस है, ऑयल है और हमारे कई ज़ख़ीरे पड़े हुए हैं बलूचिस्तान में. What's the reality in all of that? From a consumer perspective, हमारे पास जो एक known ज़ख़ीरा था गैस का वो तो रन आउट हो रहा है बलूचिस्तान, right? So it's running out because हमने यूज़ बहुत किया. सादा धंधा था कि बस जी तेल खरीदो, तेल बेचो, उससे अब लोग निकल रहे हैं. What is the reason of that, number one? और आप लोग और क्या क्या कुछ कर रहे हैं? There is a program named Tamir which is there for around 20 years, जो कि हम रखा हुआ हमने इस पूरे प्रोग्राम को solely innovation entrepreneurship. और इसको 20 साल हो गया. जी, इसको 20 साल. Probably the oldest है. corporate program in the country. Exactly. एक buzzword हमें देखने में मिलता है sustainability. What is sustainability? US में तो actually EVs की sales are declining and that's based on range anxiety है कि कार मेरी कहीं वो बंद ना हो जाए. So guys, thank you so much for taking the time out. काफ़ी आधी पॉडकास्ट तो हो चुकी है, आई थिंक कैमरा के पीछे हम लोगों ने गप लगा ली है, बट मे बी वी स्टार्ट अ बिट ऑफ इंट्रोडक्शंस कि आप लोग कौन हैं, एंड वेरी ब्रीफली कि व्हाट्स योर रोल राइट नाउ और हाउ डिड यू एंड अप at this organization. So maybe we start from you. Yeah, thanks Talha. So I've spent 27 years with this organization. So till November last year, this was Shell Pakistan. And we'll talk about this, I think, further on. Our name has changed to WAFI. WAFI Energy Pakistan Limited. So I've spent 27 years with this organization in various roles. Finance, sales, marketing, supply chain, and you said आपकी internship भी इधर ही हुई. Internship भी इधर था. So my summer internship was also here in Shell at that time. पिछले 5 साल से I'm looking after corporate relations. So my current role, just a brief about that, it looks after government relations, it looks after media, social performance, social investment, and of course communication, internal communication, external communication. और नेता आपकी भी पहली ही जॉब है ये? जी, so I started off with Shell. I've done various internships in other organizations, लेकिन Shell was my very first company to start up with. I worked in various departments. जैसे हबीब ने भी mention किया, हम लोग इसीलिए यहाँ पे इतने लंबे अरसे हैं कि हम बोर नहीं होते. So I've done customer operations, I've done business, I've done supply chain, I've done retail. Now I'm part of corporate relations team and I'm looking after social performance initiatives in Pakistan. But what is that one thing which is like sort of stopping you not going anywhere from like Shell and like from this organization overall? So respect for people बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, and that is I think the one thing which at least has held me back. And then of course they're not scared of taking a chance on you. मैंने कहा finance से start किया, I've ended up in corporate relations. So you do have the option of either doing this or specializing in whatever you're doing. So optionality है, respect है. So that sort of has held me back. Personally for me it's important. और आपके लिए भी? एक तो वैल्यूज़, आई एग्री, वैल्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है. इवन इफ़ यू फील दैट देयर इज़ एनी इशू, you know that you can reach out to someone and the action will be taken. Secondly, I never got bored. I had a chance of working in so many different departments, also outside of Pakistan. So that has kept me moving and that was somehow exciting for me to learn in every role I did. Very interesting. थोड़ा सा बताएं कि अब as a consumer मैं तो बचपन से हम बस पेट्रोल डलवाते हैं, एक पेट्रोल स्टेशन आता है, रुकते हैं, डलवाते हैं. कोई कहता था जब बचपन में, उस टाइम तो प्रॉब्ली आई थिंक कभी सोच भी नहीं थी पाकिस्तानी है, बाहर क्या है, कौन चलाता है, क्या है, बस जी गए पेट्रोल लिया. बाद में ज़ाहिर थॉट्स आना, यार इस वाले का पेट्रोल अच्छा है, इस वाले का अच्छा नहीं है, ये बाहर की कंपनी है, ये यहाँ की है. अब पाकिस्तान में ज़ाहिर है वो मर्जर्स हम देख रहे हैं, नॉट जस्ट हेयर, टेलकोज़ के अंदर, बैंकिंग सेक्टर के अंदर. सो थोड़ा सा आम बंदा जो देख रहा है उसको अगर आप नॉस्टैल्जिया में लेके जाएं कि शेल है कहाँ का, कैसे शुरू हुआ, कब आया? So Shell in one form or the other has always been in Pakistan.
So it has been in Pakistan for the last 77 years. So उसकी progress कुछ ऐसी थी कि पहले वो Shell था, उसके बाद it became Burma Shell. Burma was also an oil company. इसी region में they were big. And then the government sort of उन्होंने shares लिए इसमें, it became publicly listed, it became Pakistan Burma Shell, PBS का नाम था. तो PBS हुआ and then Shell bought out Burma globally, Burma Oil globally. And then 93 में the local company का नाम जो है वो Shell Pakistan change हो गया because Burma and Shell had more shares than the Pakistan shareholders. So it became Shell. तब से ये brand launch हुआ और वहाँ से ये journey शुरू हुई. So that's the 93 is the recent history of Shell. And then if I may talk about what's happened since briefly. थोड़ा सा एक तो ये बताएं कि जो बिफोर वी गो कि अभी क्या कुछ हो रहा है, जो ऑयल इंडस्ट्री है उसको अगर आप थोड़ा सा समराइज़ करें एक आम बंदे के लिए. जनरली तो हम आई थिंक जब गवर्नेंस की बात करते हैं या पॉलिटिकल उसमें हम देखते हैं तो 4-5 बड़ी इंडस्ट्रीज़ तो आती हैं उसमें. मतलब जनरल इकोनॉमी लोग देख रहे होते हैं नीचे जा रही है ऊपर जा रही है, बट ऑयल इज़ समथिंग आई फील लाइक एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसने पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन भी की एज रेवेन्यू एज लाइक GDP ओवरऑल. सो ये इंडस्ट्री है क्या? मतलब लोगों को तो ये ना कि जी कहीं से तेल निकलता है, वो आता है, हमें मिलता है, हम लोग ख़रीदते हैं, पैसे देते हैं. लाइक व्हाट इज़ दिस होल इकोसिस्टम? देखिए, इंडस्ट्री को सिंपली लेमैन टर्म्स में 2 में डिवाइड कर सकते हैं. देयर इज़ एन अपस्ट्रीम ऑयल इंडस्ट्री एंड अ डाउनस्ट्रीम ऑयल इंडस्ट्री. अपस्ट्रीम इज़ एक्सप्लोरेशन, जो ऑयल ज़मीन से निकालते हैं, ओशन से निकालते हैं, दैट्स द अपस्ट्रीम पार्ट. Downstream part जो है, which is where we operate, is the marketing side of the oil that is taken out, and then it is refined. Refineries को आप classify कर सकते हैं as midstream और downstream. So दो classifications में refiners operate करते हैं. So जो oil आपने निकाला उसको आपने refine किया. Crude oil में से if you heat the crude oil to a certain temperature, उसमें से चंद चीज़ें निकलती हैं. उसमें एक फ्यूल ऑयल निकलता है, मोटर गैसोलीन निकलती है, फिर डीजल निकलता है, फिर गैसेस निकलती हैं, LPG निकलती है उसमें से, एंड देन दे आर लाइक सेपरेटेड, स्टोर्ड एंड देन मार्केटेड. तो हम डाउनस्ट्रीम विंग है हमारा इस बिजनेस का. जस्ट अ ब्रीफ अबाउट हमारी इंडस्ट्री के डायनामिक्स क्या है. पाकिस्तान जो है एक इम्पोर्ट डिपेंडेंट इंडस्ट्री है. एज यू नो, क्रूड हमारा ज़्यादा निकलता नहीं है. देर इज़ वन रिफाइनरी जो कि लोकल क्रूड प्रोसेस करती है, वो अटक रिफाइनरी इन द नॉर्थ, एंड दे यूज़ लोकल क्रूड एंड देन दे रिफाइन द क्रूड एंड एवरीथिंग. बाकी सारा क्रूड जो है रिफाइनर्स यूज़ करते हैं वो इम्पोर्ट होता है. अच्छा, अदर देन दैट द रिफाइनरीज की जो आउटपुट है, दैट मोटर फ्यूल्स में जो डीजल और पेट्रोल की, अगर आप मोटर गैसोलीन की बात कर लें, दैट इन डीजल सर्व्स अबाउट आई थिंक 40-45%, और मोटर गैसोलीन में अबाउट 30%. दैट्स द रफ ब्रेकअप. बाकी सब इम्पोर्ट होता है. सो इम्पोर्ट पे वी आर हाईली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्टेड फ्यूल. तो रिफाइंड फ्यूल भी हम इम्पोर्ट करते हैं, एंड वी ऑल्सो बाय फ्रॉम लोकल रिफाइनरीज. और शेल भी दोनों कर रहा है? दोनों कर रहा है. वी हैव लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स विद रिफाइनर्स एंड देन वी हैव इम्पोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स. आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात की थी कि व्हेन यू ग्रोइंग अप, तो एक पंप की रेपुटेशन होती थी कि फॉरेन है, लोकल है. So that still plays, by the way. उसमें एक और मिक्स भी होता है. People also have perceptions, and I think जो भी कंज्यूमर की परसेप्शन होती है ना, वो बेस्ड ऑन रियलिटी होती है. कंज्यूमर को अब ज़्यादा देर तक यू कैन नॉट मिसलीड अ कंज्यूमर. वो होता है कि ये कौन से वाला पंप, इवन विद इन शेल, some pumps would have a very solid reputation, some pumps would not have a solid reputation. And that's across the industry. हाँ, ये भी मैंने सुना है कि वो अब हम इस्लामाबाद में जी वो F10 वाला एक है, वो ज़रा बिल्कुल अच्छा, so that's which is very surprising. तो हमारी business is not very complicated. तो अगर आप तेल लेते हैं from पार्को रिफाइनरी, हम ले रहे हैं, टोटल ले रहा है, PSO ले रहा है, सब ले रहे हैं, तो that oil is of similar quality, right? So where we come in, और जो हमारा चैलेंज होता है कि वी नीड टू इंश्योर कि वो जो तेल हमने लिया है पार्को से या नेशनल रिफाइनरी से या अटक से, वही तेल जो है वही आपको डिलीवर हो इन योर टैंक, बीच में उससे कुछ ना हो. सो दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज, एंड दैट डिटर्मिन्स द परसेप्शन ऑफ द पंप, द परसेप्शन ऑफ योर कंपनी. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. नहीं, लेकिन चेंज कैसे होता है? सो लेट्स से आप लोगों ने तो एज अ कंपनी एक जगह से लिया,
अब इस्लामाबाद में आपके 100 लेट्स से स्टेशंस हैं एज एन एग्जांपल, उससे भी ज़्यादा होंगे, तो आपने तो हर जगह पे एक ही दिया, सो देन व्हाई द रेपुटेशन इज़ डिफरेंट? मतलब वहाँ लोगों को ऑयल अलग फिर कैसे मिलता है? तो क्योंकि वो ये तो नहीं होगा कि एक लाइक पंप वाला अपना लेके आ रहा है कहीं से, वो शायद जैसे दूध वाला लाता है तो घर के बाहर ही उसने पानी का जो है वो 1 किलो में ला दिया। Unfortunately, very similar. Okay. तो उसमें remember when I said कि refiners break करते हैं तो जब वो different वो जो grades बनते हैं, डीजल, मोटर गैसोलीन, केरोसिन, उनकी प्राइसिंग भी डिफरेंट होती है, ठीक है, टैक्सेशन भी डिफरेंट होती है उनकी। तो उसमें होता ये है, एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज एन एलिमेंट ऑफ स्मगल्ड फ्यूल कमिंग इन, जिस पे कोई टैक्सेस ही नहीं होते, तो उसकी प्राइसिंग टोटली ऑफ होती है। क्वालिटी भी उसकी इतनी अच्छी ज़ाहिरी बात है नहीं होती, बिकॉज जो प्रोटोकॉल्स हैं स्टैंडर्ड्स के वो फॉलो नहीं होते, ट्रक्स भी नॉन स्टैंडर्ड हैं एंड एवरीथिंग। लेकिन उसमें होता ये है कि देर आर प्लेसेस कॉल्ड डब्बा स्टेशंस अक्रॉस द कंट्री, जहाँ पे ऐसा तेल और केरोसिन टाइप के प्रोडक्ट्स जो कि सस्ते होते हैं दैन डीजल या मोटर गैसोलीन, वो वहाँ पे डिलीवर होते हैं और सेंट्रली वो उसकी डोजेज जाती है टैंकर्स में। तो अगर कोई ऐसा रिटेलर है आपका जो कि ये काम कर रहा है, तो उसमें जो उस रिटेल साइट की जो क्वालिटी होगी फ्यूल की, वो नहीं होगी जो कि एक ऐसे फ्यूल की क्वालिटी हो जो कि डायरेक्टली आप रिफाइनरी से ले लें। और उसमें गेन आता है वही, जैसे पानी आप दूध में डालेंगे तो पानी इज़ लोअर वैल्यू, दूध इज़ हायर वैल्यू, तो आपका ओवरऑल मार्जिन बढ़ जाएगा। और उसमें भी वो नेस्ले का कोई अगर डाले, या वो कितना गंदा और साफ नेस्ले तो नहीं डलेगा। सो इन आवर केस जो है उसका जो उस पानी का इक्विवेलेंट आप समझ लें इज स्मगल्ड ऑयल या केरोसिन। तो वो एक डोजेज होती है, उसमें आप मिक्स करें एंड देन यू कैन सेल इट ऑन। कुछ स्टाफ का भी है इशू कहीं जगहों पे, जैसे अगर कंपनी ओन्ड साइट्स हैं या डीलर्स बहुत अच्छे हैं तो दे कीप वेरी गुड स्टाफ इन एंड दे ट्राई टू रियली सर्व द कस्टमर्स वेल। जहाँ पे इस तरह का माइंडसेट है कि ज़रा सा बचा लिया या नहीं इतना सही से सर्विस दी, तो भी थोड़ा सा कस्टमर एक डिसग्रंटल्ड और एक ऐसी सिचुएशन होती है कि अब मैं नहीं आऊँगा इस साइट पर। क्योंकि लोगों ने तो पंप्स के लाइसेंस इन अ वे लिए होते हैं, तो वो उसके हाथ में होता है उस बंदे के। एग्जैक्टली। सो वैसे तो प्रोडक्ट वाइज तो हम वी आर इन लुब्रिकेंट्स, वी आर इन फ्यूल्स, हम इंडस्ट्रियल उसमें भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, बहुत सारे हमारे इंडस्ट्रियल कस्टमर्स भी हैं। सो ऑल दीज प्लेसेस हमारी तरफ से जो फ्यूल जा रहा है या लुब्रिकेंट जा रहा है दैट इज़ ऑब्वियसली टॉप क्वालिटी, उसके सारे टेस्ट होते हैं। लेकिन अगर एंड यूज़र तक जाने तक अगर बीच में कोई डीलर अच्छा नहीं है या कोई ऐसे पार्टनर्स हैं जो सही से नहीं कर पा रहे, वहाँ थोड़ा सा आ जाता है गैप, जिसकी वजह से परहैप्स कस्टमर्स को ये फील आती हो कि वो वैल्यू नहीं है। और थोड़ा सा अगर आप लोग मार्केट शेयर बताएं, बिकॉज 4-5 बड़ी कंपनीज आम बंदे को पता है, तो उसमें व्हाट्स द डिवीजन ओवरऑल? सो मार्केट शेयर्स में फ्यूल्स का बता सकता हूँ बिकॉज दैट्स पब्लिक इन्फॉर्मेशन। लुब्रिकेंट्स इज डीरेगुलेटेड, तो दैट्स लाइक प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन। इंटरेस्टिंग थिंग इज कि आपके पास तकरीबन 30 लाइसेंसेज हैं एंड 25 एक्टिव ऑपरेटिंग ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। और थोड़ा सा बताएं कि एक आम लाइक हमें अगेन पॉलिटिकली मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा सुनने में आता था पाकिस्तान में, जी बहुत ज़्यादा गैस है, ऑयल है, और हमारे पास ज़ख़ीरे पड़े हुए हैं बलूचिस्तान में, पता नहीं कौन से ऐसे पहाड़ हैं कि वो अगर हमने बेच दिए तो क्या हो जाएगा। व्हाट्स द रियलिटी इन ऑल ऑफ दिस? देखिए हमारे पास अपस्ट्रीम, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन अपस्ट्रीम, मोर ऑफ अ डाउनस्ट्रीम गाय, लेकिन बट ओवरऑल फ्रॉम अ कंज्यूमर पर्सपेक्टिव तो हमारे पास जो एक नोन ज़ख़ीरा था गैस का वो तो रन आउट हो रहा है बलूचिस्तान में, राइट। सो इट्स रनिंग आउट बिकॉज हमने यूज़ बहुत किया है वो। तो अगर आपने एक्सप्लोर करना है, अपस्ट्रीम में जाना है, इफ़ यू वांट टू गेट मोर ऑप्शंस, तो उसमें आपको ये भी देखना होगा कि देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड द वेल हेड प्राइस, कि जब कोई एक्सप्लोर करेगा तो उसको प्राइस क्या मिलेगी। तो ये सारी इक्विपमेंट आपने यू पुट इन दिस इक्विपमेंट ओवर हियर फॉर दिस पॉडकास्ट। इसी तरह जब आप ऑयल एक्सप्लोर करेंगे देयर विल बी सर्टेन इक्विपमेंट जो कि वहाँ आएगी फॉर एक्सप्लोरेशन, फॉर डिटर्मिनिंग कि यहाँ है या नहीं है। सो ऑल दैट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। तो हमारे यहाँ जो वेल हेड प्राइस है इट इज़ सो लो टू कीप द कंज्यूमर प्राइस लो ओवर द ईयर्स के नो वन हैज़ रियली बिन इंटरेस्टेड कि वो इतना पैसा करे और वो उसका रिटर्न उसको मिले। सो दैट हैज़ ऑलवेज बिन अ चैलेंज फॉर अस। तो अब जाके देयर आर सर्टन चेंजेस इन पॉलिसीज़। आपने देखा होगा शायद गैस प्राइसेस भी ओवर द ईयर्स बढ़ी हैं। उसका रीज़न यही है to make us more competitive, to get more indigenous options coming in. So that's the reason. हमें really नहीं पता
कि हमारे कितने गैस के ज़राए कितने हैं हमारे मुल्क में. We at this point in time we don't know. So अभी it's like mostly the तुक्काज़ हैं. ठीक है. निधर थोड़ा सा बताएं कि जब हम कोई भी कंपनी पाकिस्तान में देखते हैं, मतलब टेलकोज हो, अभी ऑयल एंड गैस हो जाए, एनर्जी हो जाए, रिसेंट टाइम्स में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा एक इनोवेशन आना शुरू हुई. टेलकोज अपने कोर बिजनेस से निकल के स्टार्टअप्स में, एंटरप्रेन्योरशिप, इन जगहों पे जा रहे हैं. आप लोगों को भी अगर हम देखें जो ऑयल, तो वो जो सादा धंधा था कि बस जी तेल खरीदो, तेल बेचो, उससे अब लोग निकल रहे हैं. व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दैट, नंबर वन, और आप लोग और क्या क्या कुछ कर रहे हैं? सो बेसिकली अगर हम थोड़ा सा इंडस्ट्री को देखें, जनरली अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो लोगों का अपना एक CSR एम्बिट होता था, जिसमें वो अदर देन देयर कोर बिजनेस दे गो एंड इन्वेस्ट इन सम अदर एरियाज़. कुछ लोग स्ट्रेट ऑफ डोनेशंस दे रहे होते हैं, कुछ लोग एंटरप्रेन्योरशिप में या इस तरह के स्टार्टअप्स में लगा रहे हैं. ये थोड़ा इनिशियल था. हम लोग देयर इज़ अ प्रोग्राम नेम्ड तामीर विच इज़ देयर फॉर अराउंड 20 years, जो कि हम रखा हुआ हमने इस पूरे प्रोग्राम को फॉर सॉलिडली इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप. और इसको 20 साल हो गए हैं. जी, इसको 20 साल. Probably the oldest corporate program in the country. Exactly. अब आप सोचें कि मेरे प्रीडिसेसर्स भी इसको लेके चलते आ रहे हैं और ये एक सस्टेनेबली इतने अरसे से चल रहा है, जिसकी वजह से हम बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करते हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स को प्राइमरी. But why do you guys want to do that? It's actually there are a couple of things around it. एक तो ये कि हम इनोवेशन को सपोर्ट करते हैं, फिर हमारे 6 थीमेटिक एरियाज़ हैं जिनको हम इनवाइट करते हैं कि इन एरियाज़ में लोग आएँ. लाइक अराउंड क्लीन एनर्जी है, सर्कुलर इकॉनमी है, फिर हमारे पास वुमेन एम्पावरमेंट की कैटेगरी है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन है. सो ऑल दीज नीश आइडियाज़ दैट आर देयर इन द मार्केट, हम उसमें यंग एंटरप्रेन्योर्स को बुलाते हैं टू क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट. एंड इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट coming and celebrating it. It's about giving them an opportunity to work with us as well, and so as with other companies. So this is something that we do, and there are other programs as well, but Taamir is one of them. और जो ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं उनका मैंने ऑब्ज़र्व किया है, कुछ केसेस में दे हैव स्टार्टेड ऑफ वेल एंड देन दे डिसकंटिन्यूड इट, या वो और डिफरेंट एरियाज़ में जा रहे होते हैं, या फिर वो जाके किसी को स्ट्रेट ऑफ डोनेशंस देते हैं. हम कोलैबोरेट भी करते हैं. हमारी कोलैबोरेशन में IBA, लम्स का एंटरप्रेन्योरियल से पूरा एक सेक्शन है, उनके साथ करते हैं. थ्रू आउट पाकिस्तान नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, HEC है. सो ये सारे बहुत एस्टैब्लिश्ड प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, हम उनके साथ पार्टनरशिप करते हैं, एंड वी एक्चुअली इनवाइट सम ऑफ द गुड टैलेंट टू कम एंड प्रेजेंट देयर आइडियाज़. और एक और चीज़ जो मुझे देखने में आता है कि अगेन अभी रिसेंट टर्म्स में एक बज़वर्ड हमें देखने में मिलता है, सस्टेनेबिलिटी. वो हर कंपनी, बेशक वो उसका ताल्लुक उससे बनता है नहीं बनता, वो कहीं ना कहीं, जैसे AI है आजकल, कि आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं तो आपने पिच डेक में ना कहीं हल्का सा AI हम ज़रूर ऐड करें. सो एक आम अगर बंदे को आप फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा बताएं कि व्हाट इज़ सस्टेनेबिलिटी जब आप अपने बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, और आप लोग कब से कर रहे हैं, और लाइक व्हाट आर सम ऑफ द एलिमेंट्स इन दैट. देखिए तलहा, सस्टेनेबिलिटी के साथ एक और बज़वर्ड आता है ESG. सो ESG इज सपोज्ड टू बी द मोस्ट कॉमन प्लेटफॉर्म दैट इफ़ यू हैव दैट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर इन प्लेस, तो फ्रॉम अ स्टेक होल्डर पर्सपेक्टिव, स्टेक होल्डर आपको असेस कर सकते हैं कि कितने सस्टेनेबल आप हैं या नहीं. सो बिफोर वी कम टू ESG, जस्ट वन पॉइंट ऑन तामीर. जो तामीर के थ्रू जो एंटरप्रेन्योर्स निकलते हैं, मेरा माई कनेक्शन विद तामीर गोज़ 5 years बैक. उससे पहले I was in a different role. Taamir comes under the corporate relations ambit. So one thing that एक तो उनको कैश अवार्ड्स मिलते हैं टू द विनर्स, बट दैट्स नॉट जस्ट द ओनली पर्पस. कैश अवार्ड्स आप कितना दे सकते हैं, इट्स नॉट दैट मच. लेकिन द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि व्हेन यू जो फाइनलिस्ट्स होते हैं, about 30 finalists, right, across 6 categories. If you observe those finalists before they start off the Taamir journey, and it's like about a month and a half, 2 months की journey. And when you come to the judging day, तो उसमें 2-3 चीज़ होती हैं. एक तो we train them on their pitch, ability to make a pitch in 7 minutes. 7 minutes की pitch होती है, right? So in 7 minutes they learn to make a very good pitch. And मैं as a judge associated रहा हूँ with the Taamir program, and
pitches have been top quality. और is it like some focused category या हर तरह के हर entrepreneurs? ऑल ये जो कैटेगरीज बताई नदा ने, उन कैटेगरीज में वो अपने प्रपोजल्स भेजते हैं. वी गेट अबाउट 300, 350, 400 प्रपोजल्स every year for the Tamir Awards, and then we have a team which goes through and identifies the finalists. फिर उन finalists को हम ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि the issue is कि जजिंग डे पे जो टॉप कॉर्पोरेट्स हैं, यूनिलीवर हो गया, एंग्रो हो गया, उनके जो CSR के जो लोग हैं वो दे आर देयर एज जजेस. So they are also introduced to those people as well. Then there are other incubation center के जो leads हैं वो भी वहाँ बैठे होते हैं. So they have access to multiple channels, right? And then they are trained to make a proper pitch. And the overall feedback has been tremendous on the quality of pitches. और ESG को थोड़ा explain करें, ये बनता क्या है पूरा? हाँ, environment, social and governance. तो So environment, social governance, why stakeholders जो हैं, investors जो हैं, वो they believe it supports sustainability. एक तो because environment, मैंने आपसे कहा we are in oil, right? So it's a tough situation to be in. But if you look at environmental piece जो हमारा है, एक तो looking at innovation, वो तो अलग हो गया. But core business को अगर आप देखें तो we have been behind advocacies गवर्नमेंट के साथ over the last few years, जहाँ पे हमने import standard जो है वो influence किया है in a better way. So Euro 5 is the current import standard. Euro simply means कि आपके fuel में sulfur कितना है. Sulfur is a hazardous element. तो वो because of those initiatives हमारे import standards तकरीबन global level पे हैं. Euro 5 पे हम import करते हैं, which obviously has had will have an impact on the environment. उसका side benefit ये है कि that fuel जो है Euro 5 is used by new engines. तो जो नए engine आप देख रहे हैं ना आजकल 1200 cc, 1400 cc, अब यही engines आ रहे हैं. High combustion, very efficient, low emissions. That mixed with Euro 5 has a good impact on your emissions. So एक तो ये चीज़ तो you have to be responsible, right? So जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें जो चीज़ बेस्ट हो सकती है वो तो आप करें. तो एनवायरनमेंट में ये सोशल में, सोशल इज़ लुकिंग आफ्टर योर ओन पीपल. ESG में S जो है, इट इज़ लुकिंग आफ्टर योर ओन पीपल, लुकिंग आफ्टर द कम्युनिटी एंड द कंज्यूमर्स. सो ओन पीपल में फेयर पे, एबिलिटी टू स्पीक अप, कि अगर मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ तो निदा हैज़ ऑल द राइट टू एक्चुअली पॉइंट आउट कि हबीब व्हाट यू सेइंग इज़ रॉन्ग. सो इनेबलिंग दैट सॉर्ट ऑफ एन एनवायरनमेंट, उसका रिसर्च शोज कि ऐसी इन्वायरमेंट अगर आपकी कंपनी में है तो यू डिलीवर बेटर ग्रोथ, यू डिलीवर बेटर परफॉर्मेंस. कल्चर आपका एक ओपन कल्चर होता है. एंड देन ऑफ कोर्स योर कम्युनिटी जिसके अंदर आप काम करते हैं. तो on a year-to-year basis, there are many things that we try to do to the best of our abilities. For example, अगर आप fair pay लें तो over the years जो हमारे professional hauliers हैं, we ensure कि उनके जो हमारे drivers हैं, they are trained, they have a fair pay, they have insurances, all that we ensure to the best of our abilities कि वो करें. Then जो भी construction हमारे premise पे होती है, हमारे tanks बनते हैं, उस पे हमने कोई 12-15 साल पहले हमने mandate किया था to all vendors कि आपकी जो safety equipment है, you need to wear those. Safety shoes, helmets, and they are made part of the contract. So जो आप bid करेंगे, you include that in the cost, and then we'll select the best bidder. Okay. But all those things need to be there. उससे आप try क्या करें? आप try करें culture change करें in the whole construction industry. Then there's technology. I'm briefly going through some points, right, that we keep. So very recently हमारा जो एक there was a 8-ton या 5-ton tank motor gasoline का जो हमने move किया. There were two options. एक तो make a new tank एक terminal पे. The other option was to move an existing tank from one location to the other location. Challenge उसमें क्या है? It's like the whole metal base and everything weighs about 15 tons. It's not light. Thus you have to keep the integrity intact. So we worked with local vendors. It was our idea, implemented along with our local vendor team to move the tank from one place to the next, which was the first time कि ऐसी कोई innovation पाकिस्तान के engineering area में within oil sector हुई हो. But what that means is कि वो आपने एक दफ़ा तो कर ली, but that vendor has that knowledge to implement it across other projects as well.
So we try our best ke, when it comes to safety of our own people, of our vendors, of our contractors, हम लोग उसको contract में डालें and we try to the best of our abilities को enforce करें और उसको audit करें. So that's what S means. Socially responsible. And then उसमें तामीर भी आ जाता है, उसमें ये सब चीज़ें आ जाती हैं. And then last is governance. That's like the governance structure. तो again, research shows and there's enough data on that कि अगर आप sustainability पे focus करें तो आपकी performance भी more sustainable हो जाती है. It gets more predictable, it gets more sustainable, so which is why it's also So important. it's a hand in hand in a Hand in sense. hand, के yeah. और कितने employees आप लोगों के कितने हैं roughly? About 400. 400. Okay. Yeah. So ESG में I'd like to add a couple of points. Actually, over the years, ESG ने बहुत ज़्यादा overall इस concept ने बहुत ज़्यादा incorporates ये उठ गया है, and lot of people are talking about it ever since ये जो आपका Paris Agreement and clean energy और इस पे हुआ है, तो people are talking about more responsible investments and more responsible areas where shareholders can go and put up their money. ताकि उनको जो रिटर्न्स भी आ रहे हैं वो रिटर्न्स भी साथ साथ आए एंड साथ ही साथ वो कंपनी इतनी रिस्पॉन्सिबल हो टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, टुवर्ड्स पीपल एंड टुवर्ड्स गवर्नेंस एज वेल. तो दैट्स द मेन कॉन्सेप्ट. अब गवर्नेंस का तो ये ऑब्वियसली कंपनी टू कंपनी बेस्ड है एंड गवर्नेंस लॉज वेरी करते हैं. अगर आप इंडिया में जाएंगे, पाकिस्तान में, अगर आप यूरोप में जाएंगे तो बोर्ड स्ट्रक्चर्स एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स आर देयर एंड पीपल डू फॉलो सर्टेन क्राइटेरिया कि ये अच्छा गवर्नेंस स्ट्रक्चर है. अदरवाइज़ आपने सुना होगा बहुत सारी कंपनीज बंद हो गई या फिर उसमें करप्शन के केसेस आए, व्हाटसोएवर इस तरह से होता है. Greenwashing was the word, right? Yes, exactly. सोशल में हमने बहुत काम किया है. हमारा एक एक्सेस टू एनर्जी का फुल प्रोजेक्ट है सदर्न पंजाब में, जहाँ पे हमने क्लीन एनर्जी के थ्रू बहुत सारे फार्मर्स को सपोर्ट किया. ग्रीन एनर्जी से मतलब मेरा सोलर पावर्ड ट्यूबवेल्स हमने लगा कर दी, सोलर पावर्ड मिल्क चिलर्स हैं, फ्लावर मिल है, ताकि लोगों को जो हमारी कम्युनिटीज़ करीब में हमारे काम कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे एसेट्स हैं, हम उनको हेल्प कर सकें और उनको हमारी वजह से किसी तरह को कोई प्रॉब्लम नहीं हो. इनफैक्ट हम उन्हें जाके खुद हेल्प करते हैं. सो देयर इज़ अनदर, एक तो तामीर है, एक हमारा एक्सेस टू एनर्जी का भी एक फुल प्रोजेक्ट है क्योंकि हम सपोर्ट कर रहे होते हैं. इसमें हम इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सोल्यूशंस भी लाते हैं. सो बेसिकली वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू वर्क ऑन आवर ESG बिट एज़ वेल, जहाँ जहाँ हम इन्वायरमेंट को या फिर लोगों को एम्पावर कर सकें या उन्हें प्रोटेक्ट कर सकें. तो सच इनिशिएटिव्स आर देयर और हमारे बहुत रॉबस्ट हैं, उसको हम दे के छोड़ नहीं देते. इसीलिए हम काफ़ी मुश्किल से भी किसी चीज़ में जा इन्वेस्टमेंट करते हैं बिकॉज वी कीप एन आई ऑन इट कि वो कहाँ जा रहा है और उसका आउटकम क्या आ रहा है और कितने बेनिफिशरीज हैं उसमें. अच्छा, on this access to energy, very important again. इसमें भी sustainability वाला part is, so हमारी जो investments है ना, we abstain from donations and just money injection. So अगर आप access to energy वाला लेना project से, community हमने identify की, उनको issue क्या था, they had electricity लेकिन outages बहुत थे. तो whenever they needed the water, पानी जब चाहिए था उनको, तो पानी available नहीं होता था, जिसका backup उनके पास diesel generation थी, which was quite expensive. ठीक है, community identify हो गई. So then we thought कि technical solution ये हो सकता है possible कि आप solarize करें उसको pump को, so पानी whenever you need it, पानी available हो. So now how to implement it in a way जिससे the community takes over the responsibility for maintenance of that infrastructure. तो उसमें क्या किया कि we went in along with our NGO, we worked together और वहाँ पे हमने एक CBO बनाया, community based organization एक होती है, वो बनाई, लोगों को इकट्ठा किया. And then we told them कि भाई एक structure हम implement करेंगे जहाँ पे we put in the solar panels, but then you as a CBO will determine a tariff which you will charge to the farmers of the area जिसको आप पानी देंगे. और उस tariff से आप दो चीज़ें करेंगे. एक तो you will set up a mechanism for repayment over time for the solar panels and the maintenance of solar panels. तो उससे फ़ायदा ये होता है theoretically कि they've taken ownership of that asset और आपकी तरफ नहीं देख रहे कि अगर सोलर पैनल कहीं टूट गया कि भाई आप आके रिप्लेस कर दें. नो, सो बेसिकली वी हैव टोल्ड देम द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद यू एंड यू बिकम. सो टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि वो सारा CBO, एक CBO हमने इम्प्लीमेंट किया
एक ट्यूबवेल को किया सोलराइज, उससे बहुत फ़ायदा हुआ. द फार्मर्स गॉट वाटर, उनकी जो यील्ड है वो बढ़ गई सिग्निफिकेंटली. And then to the extent कि जो adjoining village थी, they started looking towards us कि भाई why don't you experiment with us as well. So and they were now more familiar with the CBO concept कि भाई अब आप उस पर पैसे डालें. We are happy as long as कि हमारी वो investment sustainable हो गई है. Now it's running on its own. They don't come to us for solar panel maintenance, solar panel टूट गया, whatever electrical system में. It is all being managed by that fund. So it's like one-off investment, and then like Then it's you just let like it go. Let it go. And then once you have that model going, so you can copy paste it into the next field and into the next field. So we have now, starting from one about 5 years back, we're on 3 adjoining villages now. So that is the benefit of even investment भी जरा देख के, पैसे हैं भी तो ऐसे ही ना दे दें, थोड़ा देख के दें तो अगले को भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा. थोड़ा सा हम आगे चलें. अभी रिसेंटली हमें एक न्यूज़ देखने में मिली कि बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमी की जो सिचुएशन है कि जी इंटरनेशनल कंपनीज पाकिस्तान से जा रही हैं. गाड़ियों की कुछ कंपनीज थी. शेल हमें सुनने में आया कि जी रोल बैक हो रहा है और पाकिस्तान से मूव कर रहे हैं. तो एक ज़रा पैनिक सिचुएशन अक्रॉस द कंट्री, नॉट जस्ट फॉर दिस लाइक बट और भी इस तरह की सिमिलर न्यूज़ थी. और फिर रिसेंटली आई थिंक ये भी फिर सुनने में आया कि एक सऊदी ग्रुप ने जो है वो टेक ओवर किया है उसको. तो उसके ऊपर थोड़ा सा अगर आप बताएं कि लाइक व्हाट इज़ दिस मर्जर, व्हाई आर दे लाइक मूविंग, इज दिस लाइक ग्लोबली वो एक स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग शेल की चेंज हो रही है? सो तलहा, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस अप. 2-3 चीज़ें इसमें. पहली बात तो यह कि many companies have gone over time with their own reasons, लेकिन हमारा रीज़न शेल का थोड़ा डिफरेंट था. As I mentioned, upstream and downstream, 2 aspects हैं शेल के बिजनेस के ग्लोबली. और शेल इज़ ऑल्सो participatory in the Paris Agreement, so which means इनका शेल का गोल था कि 2050 पे नेट ज़ीरो एमिशंस पे हमने आना है. तो उसके लिए शेल टुक अ वेरी सिंपल अप्रोच कि यार जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, उनके अंदर आप जैसे एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स हैं, रिग्स हैं, उनमें आप इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस कर सकते हैं कार्बन कैप्चर वगैरह के, जहाँ पे आप एमिशंस कट कर सकते हैं. जो आपके डाउनस्ट्रीम बिजनेसेस हैं, मार्केटिंग के बिजनेसेस हैं, उनमें ये करना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज इट्स वेरी फ्रैगमेंटेड. सो दे केम अप विद द आइडिया कि देयर आर मार्केट्स जहाँ से उनको रिटर्न इतना नहीं मिलता, मार्जिन्स बहुत थिन है, बिकॉज पाकिस्तान वॉज व्यूड एज अ पोटेंशियल ग्रोथ मार्केट. वो मेच्योर मार्केट नहीं थी इन द शेल वर्ल्ड ऑफ थिंग्स. इट्स अ ग्रोथ मार्केट. तो उन्होंने कहा कि यार यहाँ पे ब्रांड हमारा स्ट्रॉन्ग है इन मार्केट्स में, नॉट जस्ट इन मार्केट्स में ब्रांड हमारा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कार्बन एमिशंस हैं, उसमें और बहुत चैलेंजेस हैं एट अ स्टैंडर्ड्स लेवल एंड ऑल्सो. व्हाई नॉट मेक इट सिंपलर. हम ब्रांड रिटेन करते हैं और इन्वेस्टमेंट अपनी बेच देते हैं. सो वी कैन ट्राई टू गेट इन्वेस्टर्स हु आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग, ग्रोइंग द बिजनेस, लेकिन यूजिंग द शेल ब्रांड. सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट. उस कॉन्सेप्ट के तहत शेल वाज नेगोशिएटिंग ग्लोबली. तो उसमें फिर वाफी एनर्जी केम अप. वाफी एनर्जी, फॉर योर इंफॉर्मेशन, ऑलरेडी हैज़ अ सिमिलर डील इन सऊदी अरेबिया विद शेल. So उनके पास वहाँ पे मैंडेट है टू सेट अप शेल साइट्स. एंड इट्स अ सऊदी ग्रुप. इट्स अ सऊदी ग्रुप. एंड जो वाफी की जो होल्डिंग कंपनी है, आसियाद होल्डिंग्स, जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, देर इनटू कंस्ट्रक्शन, होटलिंग, एयरपोर्ट्स ऑपरेट करते हैं, देर इनटू वेरियस अदर बिजनेसेस. वाफी इज देयर कंपनी फॉर एंट्री इनटू द डाउनस्ट्रीम सेक्टर. और उनके लिए डाउनस्ट्रीम एंट्री पाकिस्तान में बहुत की है, बहुत इंपॉर्टेंट है. सो नाउ टू आंसर योर क्वेश्चंस और कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से, एज अ कंज्यूमर आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या चेंज हुआ है, क्या सेल हुआ है, बिकॉज शेल के रिटेल स्टेशंस, शेल के लुब्रिकेंट्स, एवरीथिंग स्टेज अनचेंज्ड. देयर इज़ नथिंग दैट इज़ चेंजिंग. इट्स अ लाइसेंस एग्रीमेंट. इसमें फ़ायदा एक और है कि लुब्रिकेंट्स की दुनिया में वी पावर जो हमारा ब्रांडेड फ्यूल है, उसमें एक हमारा पेटेंटेड लूब वो होता है, एडिटिव होता है. ऑल दोज थिंग्स, जहाँ भी इनोवेशन होगी वो आपने लाइसेंस्ड मार्केट में भी इम्प्लीमेंट करनी है. सो इवन एज अ लाइसेंस्ड मार्केट,
owned by Wafi Energy Pakistan Limited. जो भी इनोवेशन ग्लोबली होगी ऑयल में, लुब्रिकेंट्स में, उससे कंज्यूमर को फ़ायदा होगा एंड वी कैन इम्प्लीमेंट एंड रोल इट आउट इन कंट्री. इसमें दो चीज़ें हैं. वाइल वी वर विद शेल का फोकस वाज ऑन द बिग कंट्रीज, बिग रिटर्न्स, बिग इन्वेस्टमेंट्स. तो वी हैड अ कंस्ट्रेंट ऑन जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर था उसमें कि कितना आप ग्रो कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिकॉज रिसोर्सेज सबके लिए लिमिटेड होते हैं. सो दे वांटेड टू ऑप्टिमाइज ऑन द बिगर इन्वेस्टमेंट्स. वाफी के लिए Pakistan is the big investment. So they are very open to investing, putting up new tankages on our terminals, setting up new sites. So for the employees, it's literally a very different situation where Wafi is asking us to grow. From a long period of managing your current business to a period now that we've entered is rapid growth. So you're looking at investments, you're looking at new terminals coming up. So all this will start happening. और जो कोर बिजनेस है लेट्स से वाफी का, और अभी पाकिस्तान में आपने कहा कि ब्रांडिंग वही है, सब कुछ है, जस्ट लाइक द बैक एंड पे चीज़ें चेंज होंगी. Correct. Like, is there any other sort of direction? Are they going to add like new verticals into a business? या वो जो core business है oil का वो होगा. देखें within ESG में हमने S में बात की, उसमें diversity का एक बहुत बड़ा angle होता है, right? So if you get someone who has no experience of downstream oil and they have experience of more like आपकी services का experience बहुत ज़्यादा है, तो उनके ideas हैं and you will see those ideas play up. So for example, जो नॉन फ्यूल रिटेलिंग वाला जो एरिया है उसमें उनका बहुत फोकस है एंड उसमें you'll see more investment in that area coming up at our fuel stations and all that. उसमें थोड़े से issues हैं around standards. एक्सप्लोसिव स्टैंडर्ड्स गवर्न करते हैं कि आप एक रिटेल स्टेशन पे कितने बेस लगा सकते हैं, अपने सेलेक्ट स्टोर्स जैसे हमारे उसमें क्या कुछ रख सकते हैं, क्या नहीं रख सकते. वो एक्सप्लोसिव स्टैंडर्ड्स जो हैं वो हैं 1937 के. ओके. सो ओवर अगेन वन ऑफ द डिस्कशंस विद द गवर्नमेंट रेगुलेटर्स वाज कि इनको आप अपग्रेड करें. तो अपग्रेड हो गए हैं, सिर्फ उनको भी इनैक्ट करना है, उनको इम्प्लीमेंट करना है. जब वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे तो आपके फ्यूल स्टेशंस पे काफ़ी ऐसी चीज़ें आपको नज़र आएंगी जो कि अभी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज नहीं कर सकते, लेकिन ग्लोबली आप देखते हैं फ्यूल साइट्स पे. अभी हमने जैसे इनोवेशन की बात की, तो डोंट यू थिंक इट्स वेरी वो एज एन एग्जाम्पल वन साइड यू आर इन अ ऑयल बिजनेस जी, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट इनोवेशन और वो सारी चीज़ें, और फिर वहाँ से हम लोग EVs की भी बात कर रहे हैं जी. कि जी ये ख़त्म हो और क्लाइमेट चेंज और ये वो सारा. अब टेक्निकली अगर EV आता है, और पाकिस्तान में अभी तो चलें बहुत टाइम लगेगा मेन स्ट्रीम होने में. एज एन एग्जाम्पल, आई वॉज इन चाइना फ्यू मंथ्स बैक, हमें गवर्नमेंट ने वहाँ इन्वाइट किया, तो वहाँ तो 90% मेरे ख्याल से चाइना इज लाइक आई थिंक द लीडिंग ग्लोबली. और अब जाहिर है जैसे BYD आ रहा है और कंपनीज भी कर रही हैं, तो वो तो एक बड़ा वो चिकन एंड एग प्रॉब्लम नहीं है कांचे का कि यार एक, बिकॉज अगर लोग उस साइड पे आ गए तो फिर कंपनी का कोर बिजनेस डैमेज हो सकता, डैमेज तो नहीं, लाइक शेयर ऑब्वियसली कम होगा, तो उसको फिर लाइक हाउ डू यू गाइज विल बैलेंस? सो तलहा बाय इनोवेशन एक तो होती है ना इनोवेशन एट द कंज्यूमर एंड, प्रोडक्ट्स एंड. दूसरी इनोवेशन एम्प्लॉयज़ की भी होती है ना, हाउ आर दे थिंकिंग, हाउ आर दे इनोवेटिंग. तो दिस विल बी अ सेपरेट डिमांड विच इज़ बीइंग क्रिएटेड. लेकिन उस डिमांड को पाकिस्तान के लिए वील नीड टू अंडरस्टैंड एंड बी अहेड ऑफ द कर्व. दैट्स द चैलेंज फॉर एनीवन ऑपरेटिंग इन दिस सेक्टर के, हु इज़ अहेड ऑफ द कर्व, हु कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस, राइट. लेकिन अगर आप फॉर एग्जाम्पल यूरोप देखें तो वहाँ पे चार्जिंग स्टेशंस मोस्टली ऑयल स्टेशंस पे नहीं है. देयर आर अदर चार्जिंग पॉइंट्स जो कि सेटअप होते हैं. एंड देन ऑफ कोर्स होम चार्जिंग. तो शेल फॉर एग्जांपल यूरोप में होम चार्जर्स देती है. एंड देन देयर इज़ ऑल्सो कंपनी कॉल्ड शेल एनर्जी जो कि इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करती है. बिजनेस डिडंट रियली टेक ऑफ, इट्स नॉट वेरी बिग, बट दैट्स द इंटेंशन कि उस तरह भी आप उसको इस तरह भी देखें. सो उस बिजनेस को अगर आप इसी मॉडल के तहत देखेंगे तो वो दैट माइट नॉट बी द बेस्ट सोल्यूशन कि जी शेल के स्टेशन पे अब EV चार्जर आपने लगाना है. नो, दैट माइट नॉट बी द रिस्पॉन्स टू दैट. मोटरवेज पे तो लॉजिकल चार्जिंग बेस हैव टू बी देयर, बट सिटीज़ के अंदर दैट माइट नॉट बी द बेस्ट सोल्यूशन. हमने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इवन लाहौर में हमने EV स्टेशन लगाए एट अ कपल ऑफ आवर पम्प्स.
जो सिंध गवर्नमेंट ने कुछ बसेस लॉन्च किए हैं, वाइट आपने देखी, रियली नाइस बसेस, सी व्यू से चलती हैं, दे गो इन टू चुंदरीगढ़ रोड एंड ऑल. सो दे ऑल्सो हैव देयर ओन होम, बेसिकली इक्विवेलेंट होम चार्जिंग बेस जहाँ पे वो चार्ज होती हैं. इफ़ वी वांट टू बी सीरियस कि हमने अब ईवी को फोकस करना है एंड देयर इज इनफ मार्केट आउट देयर, सो देन the way to approach that would not be the traditional कि जी आप एक fuel का बे निकाल के तो एक EV लगा देंगे. No, that will not be the way to target that market. It'll be a different way where we will target. So innovation both ends पे ज़रूरी होगी, from our end as well as from the इसमें consumer ना end. थोड़ा EV की स्पेस में मैं I'd like to add a couple of points. पाकिस्तान में slowly and gradually आप देख सकते हैं कि हो रहा है इंक्रीज़, एंड काफ़ी सारे ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी आप देख सकते हैं आ रहे हैं, बाइकर्स बहुत आ रहे हैं. इनफैक्ट हमारे तामीर प्लेटफॉर्म में भी बहुत सारे लोग ऐसे आए जिन्होंने बाइक्स भी निकाली हैं, बाइसिकल्स भी निकाली हैं EV के. जब तक आप एक विनर भी था, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे विनर्स आए हैं जो कि अपने, और अभी नाउ दे हैव प्रॉपर रिटेल शॉप्स अवेलेबल जहाँ पे आप जाके इनसे बाय कर सकते हैं. अब EV का स्पेस असल में थोड़ा सा ना, इन माय ओपिनियन इट्स बिट ट्रिकी एज वेल. अभी आप अगर कोई भी एक कार प्राइस देखें, मैं हबीब से भी ये बात करी थी कि इट्स जस्ट गोइंग बियॉन्ड एक रीच से आगे जा रहा है. अगर आप एक नॉर्मल कार लेते हैं जो कि एक हम आज तक चलाते आए हैं, उसकी प्राइस वर्सेस EV कार्स की, व्हीकल्स की, क्या आप देख सकते हैं हाउ इज़ इट डिफरेंशिएटिंग फ्रॉम द ओल्ड ऑटोमोबाइल्स दैट वर अराउंड. सो अफोर्डेबिलिटी एक तो बहुत बड़ा फैक्टर है. सेकेंडली, ये जो क्लाइमेट चेंज का ओवरऑल एक हर जगह ही, आई मीन नॉट जस्ट पाकिस्तान, इवन स्पेशली यूरोप में तो बहुत ही ज़्यादा इसकी क्लीन एनर्जी एंड डीकार्बनाइजेशन और इस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है. इसका ना थोड़ा सा स्टैंस आई थिंक लोगों को या तो क्लियर नहीं है, या फिर दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड, और दे आर इन अ डिनाइल मोड एज़ वेल. जब आप एक EV व्हीकल लेते हैं, चाहे वो बाइक हो या कार हो, उसके अंदर आपको बैटरीज चाहिए, राइट? और जो लिथियम आयन बैटरीज़ हैं जो यहाँ पे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स बना भी रहे हैं, वो पूरा स्ट्रक्चर बहुत स्टाइलिश बना लेंगे, एंड दे आर कॉम्पीटिंग अगेंस्ट दोज व्हीकल्स जो कि ऑलरेडी मार्केट में बहुत पहले से उनका डिज़ाइन एंड ऑल. बट द बैटरी इट सेल्फ हैज़ टू बी इम्पोर्टेड क्योंकि लिथियम इज़ नॉट अवेलेबल हेयर. अब लिथियम आयन बैटरीज़ का सिलसिला ये है कि उसके अंदर ना रेयर जो हमारे अर्थ एलिमेंट्स होते हैं उसमें रेयर मेटल्स चाहिए. लिथियम है, कोबाल्ट है, निकल है, and this is not something that's available and it's not something grown on trees कि आप निकाल लें. So मुझे समझ नहीं आता कि एक तरफ हम overall in the entire world there is a stance on decarbonization, clean energy, but on the other hand you need these lithium ion batteries to store energy and later on maybe provide you the same energy at night. और घर पे अगर सोलर पैनल्स लगें या फिर EV चार्जर्स जो व्हीकल्स हैं उसमें चाहिए, तो ये भी तो माइनिंग के थ्रू आ रही हैं. अगर आप फॉसिल फ्यूल पे एक डिबेट करते हैं कि जी ये तो बहुत कार्बन एमिशंस हैं, तो वो लिथियम एंड ये सारा भी तो माइनिंग के थ्रू, इसमें से भी तो कार्बन इतना सारा निकलेगा और उसको फिर बाद में किया क्या जाएगा उसका. सो ये जो पूरा स्टैंस है ये थोड़ा सा आई थिंक ये डिबेटेबल है. स्टैंस बहुत सिंपल है, उसमें हो ये रहा है कि जो कंज्यूमर पार्ट पे जो है वो क्लीन है, बट जो प्रोड्यूसर पार्ट जिससे आप कंसर्न नहीं है, which is somewhere far away, वहाँ is where the carbon emissions are happening. So that's the tricky bit which Nida is mentioning. But I think ये हर इंडस्ट्री में मुझे लगता है, एज एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी जो एक्टिविस्ट हैं, बड़े एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हॉलीवुड के, अब आप एक जगह पे प्राइवेट जेट्स यूज़ कर रहे हैं और दूसरा फिर आप कॉन्फ्रेंस में आके आप तो इट्स जस्ट लाइक, मतलब it's very tricky. So China ने उसको अच्छी तरह यूज़ किया. So if you go to Beijing now, it's clean air in Beijing. Yeah. And that's primarily because of उनकी जो mass transit, motorbike, सब कुछ is on, so उससे उनको फ़ायदा हुआ है. But then again the emissions would be either far away from the main cities or somewhere else. लेकिन US में तो actually EVs की sales are declining, and that's based on range anxiety. There's a term, I think, I don't know if you, range anxiety है कि कार मेरी कहीं वो बंद ना हो जाए. So वहाँ पे electric car sales have actually started going down.
So hybrids are doing better now. But again, it's something which is a bit tricky. But we are looking at it because we're in the business of providing energy. तो लेकिन उसका जो रोड टू मार्केट होगा वो डिफरेंट होगा. इतना सिंपल नहीं होगा कि आप एक डीजल का बे उठा लेंगे और एक ईवी का बे वहाँ डाल देंगे. So that's the EV story. एंड अभी पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी NGOs हैं और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि जिनको ऑब्वियसली जहाँ से फंडिंग मिल रही है उनको ये स्टैंस दे दिया है कि भाई आपको जाके लगाना है, आप क्लीन एनर्जी में लगाएं. एंड इवन देयर आर फोरम्स वेयर दे से कि हमें कोई भी फॉसिल फ्यूल का एम्प्लॉई नहीं चाहिए क्योंकि ये तो हमारी डिकार्बनाइजेशन की ओवरऑल स्ट्रैटेजी से थोड़ा अपोज करते हैं. सो दीज आर द थिंग्स दैट perhaps more understanding या फिर clarity towards the end user as well कि it's not that clean. It has to be. अच्छा, Nida raised this totally different on motorbike से याद है. One of our winners was a person, young guy, जिसने एक वो जैकेट बनाई थी कि if it hits the ground it's sort of it's like an airbag. It's inflated. अच्छा, wow. Yeah, so the thought there, and it was a pretty nice jacket, and I've heard subsequently कि वहाँ पे this idea has उसी का ही idea he's now experimenting and making it more structured through a licensing authority, उसको assess या test करवा रहे हैं. But again it is not about कि उसकी effectiveness क्या थी. It has started a new line of thinking कि यार ये भी एक possibility है. I never thought about an it. inflatable, and he won the award at our Tameer. वरना तो हेलमेट फोकस्ड ही होता है ना कि यार एक्सीडेंटल है So तो. Talha, you'll be amazed now. In fact, we should get you into the next Tameer award as a judge. जो मैंने अपने 5 साल में देखा है, the quality of ideas जो अब आ रहे हैं is the improvement is a very steep curve actually. Wow. It's a very steep curve. Very interesting ideas. And now it's a split between if not more, it's a split between like women and men actually now equal in terms of participation. Honey, sometimes in these incubation centers I go and the ideas are just like it's brilliant, right? And they're getting better. मतलब you know, and they're getting better by the year. So, I think उसकी वो execution और उसकी वो scale के ऊपर उनको ज़ाहिर मुश्किलात और वो चीज़ें आती हैं. वो obviously I think it will take a bit of a time, but and that's important. जहाँ पे जो बड़े इंक्यूबेशन के जो रेप्स होते हैं वहाँ पे होते हैं. एट टाइम्स ड्यूरिंग जजिंग अगर वो जीत भी नहीं रहा, पीपल हैव कनेक्टेड विद सम पीपल सेपरेटली ऑन द साइड्स के हमारे से आके मिले एंड वील सी वे वी कैन टेक इट फॉरवर्ड. हमारा इनोवेशन साइड पे जो लोग काम कर रहे हैं, पीपल विद डिसेबिलिटीज़ के साथ भी लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया है. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट बायोनिक्स. दे आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग, अगर किसी का एम्प्यूटेटेड हैंड है या फिर लेग है तो वो उसको प्रोवाइड करते हैं. एंड इट इज़ ऑल AI लिंक्ड कि इट कैन एक्चुअली मूव. फिर हमारे यहाँ इवन ऐसी कम्युनिटीज़ लाइक फॉर एग्जांपल माइनॉरिटीज़ हो गए या फिर ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ हो गई, तो हमारे बाज़ियाफ्त इज़ अनदर ग्रुप दैट्स वर्किंग विद देम. उनको लाहौर में एक फाउंटेन लाइफ बिल्डिंग है जहाँ पे सेपरेटली उन्होंने एक बड़ा अच्छा सेटअप किया हुआ है फॉर देम टू वर्क विद बेस्ड टेक्सटाइल एंड build on something completely new. वहाँ पे उनका अपना clinic है and to support them with very decent earning as well. So these are the things that people are doing, and that's very different from what generally a traditional business does. फिर circular economy में लोगों ने बड़ा काम किया है. अभी pre-loved clothing पे बिस्बी उसने बहुत काम किया है. But circular economy तो हमारा ही था. Tameer, one of the Tameer winner. He's now making bricks, plastic infused bricks, जिससे हमारी first retail station in Pakistan, शारा फैसल पे, इफ यू गो बैक टू योर एयरपोर्ट पे जब जा रहे होंगे तो लेफ्ट साइड पे there's a shell site जिस पे लिखा हुआ है the first site manufactured from plastic recycled material. Wow. So the first of its kind. Yeah, I think and it was a Tameer finalist. Yeah. We need to promote, I think, these stories a bit more for a bit of. Yes. So a lot of different programs have started off. You must have seen TV पे भी आ रहे हैं. But where Tameer is creating niche is clearly around youngsters, entrepreneurship, innovation, new ideas. It's all about that. In fact, Nida, it would be more interesting if you could have a session with Talha with a couple of your Tameer instead of me. You could have a couple of Tameer entrepreneurs, those youngsters, and that would be a very interesting session.
हाँ, आई थिंक बिकॉज वही है कि इस तरह की आइडियाज वो आप नहीं, मतलब आई हैव नेवर Correct. वो इट्स अ बिट ट्रेडिशनल, वो एआई या मतलब टेक के अंदर लोग ज़्यादा आई थिंक ट्रेडिशनली वो कर रहे हैं. बिल्कुल. True. बट थैंक यू सो मच गाइस, लवली टॉकिंग टू यू. आई थिंक ऑडियंस को हमने ज़रा ऑयल को सादा लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करने की कोशिश की. Thank you for having us. Thank you so much, Tala. Thank you for your time.